Hello everyone, I'm Dr. Raman and this is your sixth practical, and the today's topic is sex-linked inheritance and its related problems. Okay, in our last class we had discussed five topics earlier, okay, that were related to the Mendelian inheritance and the problems and the karyotyping and all. Okay. Uh, if you had not gone through those videos, then you can just go through those videos first, okay? Because the dihybrid crossing and all, I had already explained in that. So let's just start the today's topic. Uh, the inheritance, it is mainly governed by genes, okay? Genes go from one population to the parent population to the next progeny and or the offsprings. In this way the inheritance of the characters, they just move, okay? So the inheritance governed by the genes present on the sex chromosomes, okay? Mainly what we had seen in the in our previous class, that the genes which we had discussed with the Mendel, these were those were the phenotypic characters, okay? The inheritance was just like they'll get tall, dwarf, okay, that all characters which he had used. तो उन सब जो करेक्टर्स का जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, वो कुछ ऑटोसोमल टाइप इनहेरिटेंस थी, बट ये जो करेक्टर्स हैं दे आर मेनली गवर्न्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स, ओके? We had discussed with in our third, fourth, I think, practical, that the number of chromosomes in that particular portion we had solved the problems that if I'll just take an example of human, that if we have 46 chromosomes, okay, then we have 44 autosomes plus 2 6 chromosomes, okay? 2 6 are X and Y for the males and X for the females, okay? These are the sex chromosomes. So the genes which are inherited through these particular two chromosomes, X and Y, they are the sex-linked genes, okay? And the inheritance is sex-linked inheritance. Example is color blindness, okay? In the case of humans, that color blindness, it is just inherited through the X chromosome. Eye color in the case of Drosophila, it is also what you say, it is a sex-linked character, eye color. And hemophilia, it is also condition. Um, so that condition is also inherited through the sex chromosomes, okay? The chromosomes which are identical in both sexes are called the autosomes, okay? These chromosomes which are similar in both males and females, okay, they are the autosomes. These are the autosomes and these are the sex chromosomes. Each autosomal pair has identical mate in both sexes, okay? Identical number रहेगा, सब कुछ identical रहेगा in the case of autosomes, but in the case of sex chromosomes, they are different in the case of male and female, okay? Females have X chromosomes, male have X and Y chromosomes. Uh, Female form XY, male is XX. Sorry, XY is male and XX is female. Okay, this is female, this is male. Male we denote like this, and females we denote like this. Okay, but in the case of humans and animals, what we say, as in the case of males, we have X and Y. That means we have two gametes. Okay, so two types of gametes. So the males are heterogametic, but females are homogametic. Okay, but in the case of poultry, the females are
heterogametic means they have ZW. And in the case of males, they have ZZ. Okay. तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है while solving the problems in the case of poultry animals. Okay. पोल्ट्री में जो फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक है, मेल्स जो हैं वो होमोगेमेटिक हैं, बट इन अदर एनिमल्स मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक एंड फीमेल्स आर होमोगेमेटिक. ओके, just move further. The sex influence traits. ओके, अभी ये जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये दो तरह से रहती है. एक होता है सेक्स लिंक्ड, एक रहते हैं सेक्स लिमिटेड. ओके, सेक्स लिंक्ड मतलब वो पर्टिकुलर जीन्स जो कि एक सेक्स के साथ ही लिंक्ड रहेंगे. ठीक है. और सेक्स लिमिटेड which are limited to a single sex. Okay, we'll just go through this. I have to erase these lines. Okay. The gene governing sex influence traits may be present on any of the autosome or the heterozygous condition of the sex chromosomes. Okay, the expression of dominant or recessiveness by the allele of the sex-influenced loci is reversed in the case of males and females due to the differences in the internal environments by the sex hormones. Okay, the example for this trait is the sex-influenced traits are most readily found in the higher animals with well-developed endocrine system. Okay, example is the gene of baldness. Okay, it is mainly expressed. It mainly expressed himself in the men's. Baldness means गंजापन. तो ये जो जीन है ये मेल्स के अंदर ज्यादा एक्सप्रेस कर पाता है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स. ओके, अगर मेल्स के अंदर रहेगा तो इट विल शो हिज डोमिनेंस, बट इन द केस ऑफ फीमेल्स इट विल जस्ट एक्ट एज द रिसेसिव. ठीक है, तो वही है द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट. ठीक है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स वो हैं जो कि सेक्स के साथ इन्फ्लुएंस रहेंगे. ठीक है, अगर के बाल्डनेस वाला जीन ह्यूमन के अंदर रहेगा और मेल के अंदर रहेगा, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो मेल होगा उसके अंदर बाल्ड कंडीशन शो होगी. ठीक है, अगर वही करेक्टर वही ये फीमेल्स के अंदर रहेगा तो उनके अंदर बाल्डनेस नहीं शो करेगा. मेल्स के अंदर इट विल एक्ट एज अ डोमिनेंट जीन एंड इन द केस ऑफ फीमेल्स इट विल एक्ट एज अ रिसेसिव जीन. ओके, next is sex limited inheritance. Sex limited, some genes may only express in one of the sexes, either males or females, because of different internal environment, because of the anatomical dissimilarities. When the penetrance of the gene in one sex is zero, the trait is known as sex limited trait. Okay, अब वो पर्टिकुलर ट्रेड जो सिर्फ एक सेक्स के साथ अंदर ही है. ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो हम एनिमल सिलेक्शन हमने पढ़ी. ठीक है, अभी सायर सिलेक्शन हमने देखा. जो मेल्स हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं फॉर द मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, अब वो मेल के अंदर वो जीन्स तो हैं बट मेल के अंदर वो जो जीन्स हैं वो एग्जिबिट नहीं कर पाते अपने आप को. ठीक है, वो शो नहीं कर पाते. ठीक है, तो we know the bulls have many genes of milk production that may transmit to their daughters, but males are unable to express this trait. Another example, it is egg production. Okay, egg production, milk production, ये females के character है mainly. ठीक है, ये males के नहीं. ठीक है, तो इनकी इनहेरिटेंस अब करेक्टर मेल के अंदर भी है बट अपने में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. ठीक है, मेल्स ने आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने हैं. ठीक है, तो इन करेक्टर्स को हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड, क्योंकि अब ये लिमिट है इनटू अ सिंगल सेक्स. मतलब ये फीमेल के अंदर शो होगा, मेल के अंदर नहीं शो होगा. ठीक है, these traits are present on the autosomes. ये मेनली ऑटोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ये तुम्हें एक बहुत बेसिक सा इसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, now we have some questions in this particular exercise.
तो उनको हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले वी हैव टू सी certain basic rules, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ a character is x linked, ठीक है, अगर वो x के साथ लिंक्ड है, मतलब हम इसको मान लेते हैं स्टार, ठीक है। अगर ये x के ऊपर स्टार है, ठीक है, और सिंगल है x, ठीक है। अब ये है वो पर्टिकुलर ट्रेट वाला, ये है नॉर्मल x क्रोमोसोम, ठीक है। अगर ये अब मेल के अंदर जाएगा with y, that will show the character, ठीक है। अगर ये फीमेल के अंदर जाएगा, ठीक है, x स्टार, ठीक है, तो अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, साथ x है, तो इसमें ये ट्रेट शो नहीं होगा, तो ये रहेगा एज अ कैरियर, ठीक है। ये एक बेसिक सा रूल था जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। A sex-linked recessive gene produce a red-green color blindness in humans, ठीक है। एक रिसेसिव जीन है, ठीक है, वो कलर ब्लाइंडनेस करता है ह्यूमंस के अंदर। द नॉर्मल वुमन whose father was color blind married to a color blind man, ठीक है। अब ये जो है कलर ब्लाइंडनेस का जीन, ये मेनली हम एक्सप्रेस करते हैं इसको विद एक्स सी, ठीक है। एक्स सी इज द जीन विच कॉज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब एक मेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए, एज ए मेल हैज सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन हिज टोटल जीन्स, तो एक्स सी विद वाई, ये जो मेल होगा ये होगा कलर ब्लाइंड, ठीक है। बट फीमेल कलर ब्लाइंड कब होगी? जब उसके अंदर एक्स सी और एक्स सी दोनों पड़े रहेंगे, ठीक है। यही जो मैंने तुम्हें अभी पहले बताया, ठीक है। एक्स सी दोनों रहेंगे तभी एक फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड होगी, नहीं तो इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन शी विल बी द कैरियर, ठीक है। तो ये कैरियर रहेगी, नॉर्मल रहेगी, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, बट शी एक्ट एज अ कैरियर, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में वो दे सकती है जीन्स, ठीक है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नॉर्मल वुमेन है। नॉर्मल वुमेन मतलब दूसरा अभी हमें इसका नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में भी शील एक्ट एज अ कैरियर, बट वो होगी तो नॉर्मली, ठीक है। अभी इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और whose father was color blind, इस फीमेल का जो फादर था दैट वाज कलर ब्लाइंड, मतलब उसके अंदर एक्स सी और वाई ये था, ठीक है। अब एज शी इज अ फीमेल, तो एक्स जो है फादर का वो इसके अंदर तो आया होगा, ठीक है, तभी ये एक फीमेल बनी ना। अगर वाई आता तो मेल आ जाता। तो अगर फादर का इसके अंदर एक्स सी आया है, ये एक्स क्रोमोसोम आया है, तो एक्स जो है ये किस तरह का क्रोमोसोम है? हीमोफिलिक, ठीक है। तो हीमोफिलिक कंडीशन है इसकी, तो नाउ शी इज अ कैरियर, ठीक है। अब इस एक लाइन से हमें पता लग गया कि जो फीमेल है शी इज कैरियर, ठीक है। कलर ब्लाइंड मैन मैरिड टू अ वुमन, सॉरी, नॉर्मल वुमन, शी इज नॉर्मल, बट नॉर्मल थी, ठीक। नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, अब कलर ब्लाइंड है मतलब शी इज अ कैरियर, ठीक है। तो फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिड टू अ कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है। अब कलर ब्लाइंड मैन से इसकी शादी होगी, ठीक है, एक्स सी एंड वाई। अब मेल के अंदर तो ये कैरेक्टर इसी तरह से रहेगा, ठीक है। अब इसका फर्स्ट है, व्हाट जीनोटाइप आर पॉसिबल फॉर द
मदर ऑफ कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब इसकी मदर की कलर ब्लाइंड की इसकी क्या हो सकती है, ठीक है, जीनोटाइप्स इन्होंने पूछी है, ठीक है। पहला, बट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर द मदर ऑफ कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है। इसको, इस चीज को हम दोबारा से पढ़ते हैं। नॉर्मल वुमेन, शी इज नॉर्मल, ठीक है, कैरियर है बट शी इज नॉर्मल, whose father was colorblind, father is colorblind, ठीक है, XCNY, married to a colorblind man, ठीक है, कलर ब्लाइंड मैन से इसकी शादी हुई, ठीक है। अब फर्स्ट है, व्हाट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर द मदर ऑफ द कलर ब्लाइंड मैन। अब इस कलर ब्लाइंड मैन की जो मदर है वो क्या क्या किस किस तरह के जीन्स उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि ये जो XC है उसको उसको उसकी मदर से मिला है, ठीक है, उसकी मदर से मिला है, फादर से तो आया, ठीक है। अब फादर से इसको आया भाई, ये XC आया उसको उसकी मदर से, तो उसकी मदर या तो वो होगी प्योरली हीमोफिलिक, XC, ठीक है, या उसकी मदर होगी कैरियर, ठीक है। तो ही हमारे पास इस फीमेल से तो हमें सिंगल तरह के गेमीट्स मिलेंगे, इससे हमें दो तरह के गेमीट्स मिलेंगे, एक्स एंड XC। तो ये XC उसके बेटे के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह से बना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर मदर ऑफ कलर ब्लाइंड मैन, तो ये दोनों तरह के जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, ठीक है, इस कलर ब्लाइंड मैन के, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम दिस मैरिज विल बी कलर ब्लाइंड। अब इनकी अगर मैरिज हो, ठीक है, ये नॉर्मल फीमेल विद कलर ब्लाइंड मैन, तो इनके केस में कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनके बच्चे के अंदर कलर ब्लाइंडनेस आएगी फिर से। तो अभी क्या है, विल जस्ट ड्रॉ दिस, ठीक है। अब इसके अंदर से हमें दो तरह के जीन्स मिलेंगे, XC, ठीक है, इसके अंदर से हमें मिलेंगे XC एंड Y, इसको हम रख लेते हैं XC एंड Y, ठीक है, XC एंड Y। अब ये हो गया तुम्हारा XC XC, ठीक है, X एंड Y, X एंड Y, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया XC एंड Y, ठीक है। ठीक है, अभी ये तुम्हारे हो गए हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। चार बच्चे हमें इस तरह से, इस तरह के कॉम्बिनेशन में मिल सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट आर द चांसेस दैट फर्स्ट चाइल्ड फ्रॉम दिस मैरिज विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड के कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं, ये रहेगा नॉर्मल, ठीक है, ये रहेगा नॉर्मल, ठीक है, नो डाउट शी इज अ कैरियर बट नॉर्मल, ठीक है। ये जो है दीज पर्टिकुलर विल बी कलर ब्लाइंड, ये होगा कलर ब्लाइंड मेल, ये कलर ब्लाइंड फीमेल। तो ओवरऑल जनरेशन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस के आने के चांसेस कितने हैं, 50%, ठीक है। और अगर तुम्हें पूछे, आई थिंक दिस कलर इज नॉट विजिबल, ये ठीक है, ठीक है, 50% चांसेस रहेंगे, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के अंदर। अगर तुम्हें पूछे कि कितने परसेंट चांसेस हैं एक हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड मेल के, ठीक है। अब टोटल मेल कितने हैं, 50%, उनमें कलर ब्लाइंड के कितने हैं, 50% का भी हाफ, दैट इज 25%, ठीक है। अभी तक के लिए इस क्वेश्चन में हमें चाहिए कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन के अंदर हमें चाहिए, तो दैट इज 50%।
ठीक है, let me erase this, do the second. Okay, the second is man in man, sex-linked recessive gene produce green red color blindness, ठीक है, वो हमने देख लिया है. कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है, अब इसके अंदर कलर ब्लाइंड मैन XCY married to a normal vision woman, ठीक है, नॉर्मल विजन वाली एक वुमन के साथ इसकी शादी हुई है, मतलब शी हैज अ सिंगल एक्स, दूसरा अभी हमें नहीं पता, ठीक है, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ठीक है, अब इसका अगर फादर जो है शी इज कलर ब्लाइंड विद वाई, तो ये जो पर्टिकुलर है इसके अंदर ये एक एक्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है, दैट मीन्स अब इसका जो जीनोटाइप है वो है ये, ठीक है. कलर्स विजिबल नहीं है इसके ऊपर, दिस इज फाइन, ठीक है. तो व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ, what are the possible genotypes of the woman? ठीक है, अब इस वुमेन का पॉसिबल जीनोटाइप क्या है ये हमने लिख ही लिया, ठीक है. अगर वो उसका फादर जो है दैट इज हेमोफिलिक, दैट मींस XCNY, ठीक है, अभी वो हेमोफिलिक तो है ही, तो जो उसकी डॉटर होगी उसके अंदर ये एक्स तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो शी इज, दिस इज द आंसर ऑफ दिस ए पार्ट. What is possible genotype of the woman? This is the possible genotype of the woman. What are the possible genotypes of mother of the color blind man? ठीक है, अब ये कलर ब्लाइंड मैन है, इसकी मदर का आगे क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, ठीक है. अब ये जो है वाई दैट विल कम फ्रॉम द फादर, ठीक है, और ये जो XC है ये उसकी मदर के पास से आया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, एक्स XC या तो वो होगी कैरियर या वो होगी प्रॉपर कलर ब्लाइंड. तो ये दो तरह के कॉम्बिनेशन जो हैं वो हो सकते हैं फॉर द मदर ऑफ दिस कलर ब्लाइंड. ओके, डिटरमाइन द phenotype, genotype and the ratios in the offspring of this marriage, ठीक है. अब इनकी मैरिज हो अगर, ये कलर ब्लाइंड मैन विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो इसका हम क्रॉस बना लेते हैं, ठीक है. अभी हमारे पास क्या है, XC एंड Y, ये दो गमीट्स हैं फ्रॉम मेल, एंड X एंड XC, दीज आर द टू गमीट्स फ्रॉम द फीमेल, ठीक है. तो ये हमारे पास बन गया XC XY XC एंड Y, ठीक है. तो अभी हमारे पास टोटल
अगर हम एक रेशो निकाल लें, नॉर्मल इज टू कलर ब्लाइंड, ठीक है, नॉर्मल इज टू कलर ब्लाइंड की रेशो क्या है, दैट इज द फिनोटाइपिक रेशो, कितनी रहेगी, कलर ब्लाइंड कितने हैं, दो कलर ब्लाइंड हैं, ठीक है, और दो जो है तुम्हारे नॉर्मल है, ठीक है, दो नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम देखते हैं नॉर्मल इज टू कैरियर इज टू कलर ब्लाइंड, ठीक है, तो ये कितना है नॉर्मल, एक है, ठीक है, दैट इज मेल, ये मेल नॉर्मल है। जो कलर ब्लाइंड है वो कितने हैं, दो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, और जो तुम्हारा सॉरी कैरियर है वो है एक, शी इज द कैरियर, कलर ब्लाइंड कितने हैं, दो, ठीक है। तो ये तुम्हारी रहेगी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। बट फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ द गर्ल प्रोड्यूस इज एक्सपेक्टेड टू बी, कितना परसेंट हो सकता है गर्ल्स का, फर्स्ट कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड कितनी है फीमेल में, 50%, 50% जो लड़कियां होंगी वो कलर ब्लाइंड हो सकती हैं, और कैरियर रेस्ट 50% आर द, ठीक है, कैरियर, बट दैट इज फ्रॉम द गर्ल्स ओनली, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता व्हाट फ्रैक्शन परसेंटेज ऑफ गर्ल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द होल पॉपुलेशन, ठीक है, दैट इज कलर ब्लाइंड कितनी है गर्ल्स फ्रॉम द होल पॉपुलेशन, या होल ऑफस्प्रिंग कितने हैं, उनमें से कितनी गर्ल्स जो हैं वो हो सकती हैं जो कैरियर, ठीक है, तो वो है तुम्हारी 50%, ठीक है ना। तो वो चीज़ तुम्हें ये देख लेनी है कि क्या किस तरह से क्या मेंशन कर रखा है इसके अंदर। I will move further. This will take me time, ये सब दोबारा दोबारा से करने में, ओके, चलो ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल, a sex-linked recessive gene in dogs cause hemophilia, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जो है रिसेसिव जीन है, ठीक है, सिमिलरली एक्स एच, दैट इज द जीन विच कॉज हीमोफीलिया, मेल्स के केस में एक्स एच वाई इज द हीमोफिलिक मेल, ठीक है, बट फीमेल्स के केस में एक्स एच शी इज द हीमोफिलिक, ठीक है, एक्स एक्स एच शी इज द कैरियर, ठीक है, वही चीज सब कुछ सेम है, ठीक है। What proportion among offsprings विल बी हीमोफिलिक ऑन क्रॉसिंग, ठीक है, नीचे वालों को अगर हमने क्रॉस करना है तो क्या हमें मिलेगा, किस तरह की पॉपुलेशन मिलेगी हीमोफिलिक की, ठीक है, कितनी मिलेगी, हीमोफिलिक डॉग विद नॉर्मल होमोजाइगस बिच, हीमोफिलिक डॉग मतलब ये कॉम्बिनेशन रहेगा एक्स एच एंड वाई, इसको क्रॉस कराना है हमने नॉर्मल फीमेल के साथ, ठीक है, अभी ये रही तुम्हारी नॉर्मल फीमेल, ठीक है, वैसे ही पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स एच वाई, दैट इज द hemophilic dog मेल, और विद द नॉर्मल होमोजाइगस पिच, ठीक है, नॉर्मल होमोजाइगस मतलब ये, ठीक है, नॉर्मल करेक्टर जिसके अंदर हीमोफिलिक जीन नहीं है, ठीक है। अब इसका हो गया एक्स एच एक्स एक्स एच, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स एच एंड एक्स वाई, ठीक है। अभी ये जो तुम्हारी फीमेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर हीमोफिलिक जीन तो गया, ठीक है, बट ये क्या है, कैरियर्स हैं, ठीक है, कैरियर्स हैं ये वाली, तो ये क्या है, नॉर्मल ही है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर
ये मेल के अंदर शो हो जाता, तो मेल के अंदर ये जो है जीन दैट विल कॉज हीमोफीलिया। फीमेल्स के अंदर XH XH अगर दोनों आ जाएंगे तो दैट विल कॉज द हीमोफीलिया। तो अभी क्या है, हीमोफिलिक कंडीशन कितनी है, 0%। ठीक है, इसके केस में कोई भी नहीं है। ठीक है, सभी के सभी जो हैं दैट आर नॉर्मल। अगर हम जीनोटिपिकली देख रहे हैं, जो मेल्स हैं दे आर कंप्लीटली नॉर्मल, बट इन द केस ऑफ फीमेल्स दे आर कैरियर्स। ठीक है, बट ओवरऑल दे आर नॉर्मल। नाउ द सेकेंड पार्ट, a carrier bitch with a hemophilic dog. Carrier bitch is XXH। ठीक है, with the hemophilic dog, hemophilic dog क्या है, XHY। ठीक है, XHY, और ये तुम्हारा आ गया XXH। ठीक है, XXH XY XHXH। ठीक है, अभी ये तुम्हारी है कैरियर, ये है नॉर्मल, ये है हीमोफिलिक फीमेल, ये है हीमोफिलिक मेल। तो ओवरऑल ऑफस्प्रिंग में हीमोफिलिक कितने आ गए ऑफस्प्रिंग, दैट इज 50%। अब इस केस में वी हैव 50% चांसेस की जो ऑफस्प्रिंग है वो हीमोफिलिक हो सकते हैं। ठीक है, इन अवर लास्ट वी हैव हीमोफिलिक विच विद द नॉर्मल डॉग। ठीक है, हीमोफिलिक विच XH with the XY। ठीक है, हीमोफिलिक, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके केस में वी हैव XH XH X एंड Y। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा X X H X X H X H Y। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है, तुम्हारी जो फीमेल्स हैं, बोथ द फीमेल्स आर कैरियर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, बट बोथ द मेल्स आर हीमोफिलिक। ठीक है, अगर इस तरह का क्रॉस होगा तो इसके अंदर जो तुम्हारा मेल्स हैं दे विल जस्ट हैव दिस हीमोफिलिया। ठीक है, हीमोफिलिक डिजीज होगी, और इन द केस ऑफ फीमेल्स दे विल जस्ट एक्ट एज अ कैरियर्स। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो हीमोफिलिक कितने होंगे ऑफस्प्रिंग्स, 50%। दे बोथ ऑल आर द मेल्स, 50% ऑल आर द मेल्स। ठीक है, अभी हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल, example number 4, the sex-influenced gene governing the presence of horns in the sheep exhibit dominance in males but act as a recessive in the case of females। ठीक है, जो हॉर्न्स वाला करेक्टर है वो जो फीमेल्स के अंदर है, ठीक है, that will just act as a recessive gene। ठीक है, और in the case of males that will just act as the dominant gene। ठीक है, when the Dorset breed, अगर जो डॉर्सेट ब्रीड है, ठीक है, जिसके अंदर दोनों ही जो मेल फीमेल हैं वो हॉर्न्ड रहते हैं। ठीक है, दैट हैज द जीनोटाइप ऑफ XH। ठीक है, ठीक है, HH मीन्स XH। ठीक है, X के ऊपर ये H रहेगा। ठीक है, इट इज जस्ट a way of denoting that particular uh, say the chromosome। ठीक है, तो जो दूसरी है सपोक, तो इसके अंदर जो है ये रहेगा X
H1, ठीक है। दिस इज द हॉर्न्ड जीन, इन दोनों के केस में अलग अलग है, ठीक है। हॉर्न कंडीशन जो है वो इन दोनों के केस में अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, व्हेन द डॉर्सेट ब्रीड, ठीक है, एच एच इज क्रॉस्ड विद सफोक ब्रीड, ठीक है, तो क्या फिनोटाइप रहेगी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो सफोक का मेल है, ठीक है, सफोक का जो मेल है, डॉर्सेट का मेल है एक्स एच वाई, इसको हम क्रॉस करेंगे विद द सफोक फीमेल H1 X H1, ठीक है। पहला क्रॉस इनका होगा और दूसरा क्रॉस होगा, अभी हम दूसरे का यूज करेंगे। इन द केस ऑफ मेल विल चूज द सफोक्स का मेल, ठीक है, और डॉर्सेट की फीमेल एच एक्स एच, ठीक है। इन दोनों क्रॉस में हम देखेंगे कि क्या हमारे पास फिनोटाइप आई है, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसको हम वैसे ही पुनेट स्क्वायर लगा के क्रॉस करेंगे, तो जो हमारे पास इस क्रॉस में हमें फिनोटाइप मिलेगी, ठीक है, दैट वुड बी एक्स एच एक्स एच बार की रेशो विद एक्स एच एंड वाई, दैट इज इन 1:1 रेशो, ठीक है। तो जो फिनोटाइपिक कंडीशन रहेगी वो इस तरह से रहेगी, ठीक है। बट इन द केस दिस अदर, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। अगर हम इनको क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो हमें जो जीनोटाइप मिलेगा दैट इज एक्स एच एक्स H1, ठीक है, इस टू एक्स H1 वाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन रहेगा इन 1:1 रेशियो, ठीक है। वो तुम पुनेट स्केल लगा के इनको, इनका जो गमीट्स है वो यहाँ फिल करोगे तो तुम्हारे पास इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी इन 1:1 रेशियो में, ठीक है। फिनोटाइप की रेशियो उन्होंने पूछी है वो यही है, ठीक है। इन अवर नेक्स्ट एग्जांपल, अ गर्ल फ्रॉम नॉर्मल विजन ऑफ नॉर्मल विजन जो है उसको, उसका जो फादर है दैट इज कलर ब्लाइंड, ठीक है। अगर कलर ब्लाइंड उसका फादर है तो मतलब एक्स क्रोमोसोम उसके पास आया है फ्रॉम द फादर दैट इज कलर ब्लाइंड, मतलब दैट गर्ल इज द कैरियर, ठीक है। तो ये हो गया उस गर्ल का जीनोटाइप जिसका जो फादर है दैट इज कलर ब्लाइंड, ठीक है। मैरिड टू अ मैन ऑफ नॉर्मल विजन, मैरिड टू अ मैन विद नॉर्मल विजन, ठीक है, मतलब ये है उसका, ठीक है। उसके पास ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन नहीं है, ठीक है। हु इज फादर वाज आल्सो द कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब इसका फादर जो है, ठीक है, वो कलर ब्लाइंड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्स है दैट विल नॉट गो टू द मेल, दैट विल, इस मेल के अंदर ये वाई गया है, ठीक है। ये जो एक्स है इसको इसकी मदर से मिला, इस मेल को, ठीक है। तो उसकी मदर या तो कैरियर होगी या उसकी मदर नॉर्मल होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बट इसके केस में ये मेल जो है
नॉर्मल है, ठीक है। ये फीमेल जो है शी इज गर्ल विद नॉर्मल विजन, जिसका फादर जो है कलर ब्लाइंड है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं तुम्हें ध्यान रखनी है, किस तरह से तुम्हें क्या जीनोटाइप इनका लिखना है, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं इनको थोड़े ध्यान से पढ़नी है, ठीक। व्हाट टाइप ऑफ विजन कैन बी एक्सपेक्टेड इन देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब तुम्हारे पास ये दो हैं, इनका क्रॉस करेंगे हम, ठीक है। वैसे ही है एक्स, एक्स सी, ठीक है। ये है एक्स, ये है वाई, वही चीज है एक्स 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 सी, और ये जो है दैट इज एक्स एंड वाई, एंड इन दिस केस दैट इज एक्स सी एंड वाई, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास रेशो क्या आई है, ठीक है। नॉर्मल कितने हैं, ठीक है। पहला नॉर्मल इज टू कलर ब्लाइंड कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं 1 2 3, कैरियर है बट है तो नॉर्मल ही, ठीक है। 3:1, ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल इज टू कैरियर इज टू कलर ब्लाइंड कितने हैं, ठीक है। दैट इज नॉर्मल कितने हैं 2, कैरियर कितना है 1, और कलर ब्लाइंड कितना है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका, ठीक है, रेशियोस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इन द केस ऑफ पोल्ट्री। पोल्ट्री के केस में हमने ये चीज पहले ही देखी थी कि जो मेल्स हैं दे आर होमोगेमेटिक एंड फीमेल्स आर द हेट्रोगेमेटिक, ठीक है। मेल्स जो हैं दे आर होमोगेमेटिक, फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक। अब इनका हम देखते हैं कि किस तरह से करना है, ठीक है। बेयर्ड करेक्टर है, ठीक है। बेयर्ड को हम रखते हैं जेड बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड बी, ठीक है। मतलब जेड डब्ल्यू बी, मतलब नाउ शी इज फीमेल विद बेड कंडीशन, ठीक है। फीमेल है क्योंकि फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक, नॉट मेल, ठीक है। मेल को बेड होने के लिए ही हैज टू बी लाइक दिस, ठीक है। अगर इस तरह का रहेगा तो वो रहेगा कैरियर, ठीक है, वो बेड करेक्टर शो नहीं करेगा, ठीक है, मेल्स के अंदर। जैसे हम बाकी एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो इन द केस ऑफ पोल्ट्री इट इज जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, क्योंकि मेल्स आर होमोगेमेटिक एंड फीमेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, ठीक है। इफ अ नॉन बेयर्ड कॉक, ठीक है। अब नॉन बेयर्ड है कॉक मतलब फीमेल और मेल, ठीक है। अब एज दे आर होमोगेमेटिक तो हम बोलते हैं कि नॉन बेयर्ड है तो वो कैरियर भी तो हो सकता है, हमें नहीं पता दूसरा क्या है उसका, ठीक है। तो इसको हम ऐसे खाली छोड़ देते हैं, क्रॉस्ड विद अ बेयर्ड hen, ठीक है। इसको हम क्रॉस करते हैं विद द, ठीक है, and the F1 female from this cross is mated with her father and F1, okay। अब इन्होंने कहा है नॉन, जो बेयर्ड कॉक कॉक है, ठीक है, इसके केस में विल जस्ट टेक इट एज अ होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। इसको हम इन आपस में क्रॉस करेंगे, उसमें जो फीमेल आएगी उसको मेल के साथ उसके फादर के साथ क्रॉस कर देंगे, डॉटर को विद द फादर एंड सन को विद द मदर, ठीक है। ये क्रॉस हमने करना, ठीक है। तो पहला तुम्हारा क्रॉस, ठीक है, इससे हमें मिलेगा जेड 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 बी एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो जेड जेड बी जेड जेड बी जेड डब्ल्यू जेड डब्ल्यू, ठीक है। ये जो है अब तुम्हारे आ गए हैं, जेड डब्ल्यू इज द फीमेल हेट्रोगोमेटिक
ZB are the males, homogametic, ठीक है। अब इन मेल्स को करना है हमें क्रॉस विद द मदर, इन फीमेल्स को क्रॉस करना है विद फादर, ठीक है। पहला क्रॉस अब क्या बनेगा, और हमें देना है इनका ओवरऑल कितना रेशो बन रही है, ठीक है। तो ZB, ठीक है, ZB का क्रॉस रहेगा विद ZBW, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा ZB, 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 ZW, ZBW, ठीक है। तो इसके केस में जो तुम्हारी एक फीमेल है, शी इज कैरियर, ठीक है, ऑफ द बेड करेक्टर, वन फीमेल इज बेड, वन मेल इज नॉर्मल नॉन बेड, and one male, sorry, I'll just tell you again, this is the male, ठीक है। तो जो तुम्हारा मेल है that is carrier, this male is paired, this female is normal, and this female is paired, ठीक है। don't confuse like me, ठीक है। ये जो heterogametic है, these are the, अगर तुम्हें confusion लगे तो इनको लिख लिया करो, ये तुम्हारे हैं मेल्स, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे मेल्स हैं, मेल्स के अंदर 50% वी हैव बेयर्ड एंड रेस्ट 50% आर द कैरियर्स। इन द केस ऑफ फीमेल्स 50% आर द बेयर्ड एंड 50% आर द नॉर्मल्स, ठीक है। अभी दूसरा जो हमारा क्रॉस बनेगा इसके अंदर, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। अभी हमने ये लिया था, अभी हम ये लेंगे ZW, ठीक है। ZW का क्रॉस है किसके साथ, ZZ के साथ, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे हो गए दैट इज ZZ, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ओवरऑल हो गया, सभी के सभी दे आर नॉन बेड, ठीक है। तो ये तुम्हारी होगी इसकी, बट अपीयरेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग, तो हम इससे बता सकते हैं कि इसके अंदर जो सारे इस क्रॉस से सारे के सारे जो हैं दे आर नॉन बेड। इसके अंदर जो तुम्हारे फीमेल्स हैं 50% आर बेड, 50% आर नॉन बेड। In the case of males also, we have 50% paired and 50% non-paired. But genotypically, we have 50% paired, ठीक है, males with 50% carriers, ठीक है। What effect does the recessive gene linked factor show on the sex ratio in man? ठीक है। अब ये जो रिसेसिव जीन्स हैं, ठीक है, अगर हम हीमोफिलिक कंडीशन की बात करते हैं XH, ठीक है, NY, मेल के केस में इट विल जस्ट एक्ट एज अ डोमिनेंट जीन, ठीक है। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह शो करता है और उसके अंदर हीमोफिलिक कंडीशन शो कर देता है। सिमिलर इज विद द कलर ब्लाइंडनेस, XC विद Y, ठीक है, मेल के अंदर इट विल एक्ट एज अ डोमिनेंट, ठीक है तो ये रिसेसिव बट इट एक्ट एज अ डोमिनेंट जीन, और वैसे ही अपना करेक्टर शो कर देता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल विद दिस टुडेस लेक्चर। आई होप तुम्हें ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनका थोड़ा आइडिया हो गया होगा। दीज न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं काफ़ी जब भी हमने कोई एग्जाम देना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, आगे जब तुम दोगे तो उसके अंदर विल जस्ट आस्क दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ICAR का जब भी तुम पेपर दोगे उसके अंदर एक आधा क्वेश्चन ये होता ही है हमेशा, ठीक है। तो जस्ट इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देख लेना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो एज ऑलवेज आई जस्ट गिव माय लिंक in the description, my email ID in the description, so you can contact me through the email, okay। Thank you so much.